ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਜੰਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਫੌਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੌਰਨਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ। ਖੱਬੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਧ ਬਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਖੱਬੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਤਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਮੂਰਤ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਕੋਈ 2, 3, 4 ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ
यही मनुख गुस्ताखी माफ किसी का दुश्मन है, तो हुण दुश्मन के सामने इहदा चेहरा कुछ होर है, ये वो नहीं है। इहदी अखां भी कुछ होर ने, चेहरे दे हाव भाव भी कुछ होर ने। अंदर दियां भावनावां चेहरे नूं बदलदियां ने, अंदर दियां भावनावां अखां नूं बदलदियां ने। इक्को ही मनुख है, इहदे इतने चेहरे। अगर कोई बारीकी नाल चित्र बनाण वाला होवे, यकीन जानो एक मनुख दे भी कई रूप ने, कई रूप। मन दे हाव भाव, मन दे विचार, मन दी सोचनी मत्थे ते प्रगट होंदी है। जद कदी किसे नूं प्रभु दा नाम प्राप्त हो जाए अंदरों, वो रतन है, महान है। महाराज दी बाणी कहंदी है, गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया। हुण मत्थे सिंधी दे च कहंदे ने सामने, मत्थे आए सामने, ते मत्थे मस्तक। गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया। इत्थे मत्थे तो मुराद सामने नहीं लवांगे, सामने कित्थे प्रगट होवेगा, मस्तक ते प्रगट होवेगा। वो भावनावां, वो हाव भाव चेहरे ते प्रगट होंदे। मस्तक अनेकां रूप बदलदा है, अनेकां रूप। दिन भर भी इसदे रूप बदलदे ने। विचार जैसे चलदे रहिंदे ने, चेहरा बदलदा रहिंदा, बदलदा रहिंदा। इक्को ही मनुख दे इतने चेहरे, इक्को ही मनुख दे इतने दर्शन। ये पिता भी है, ये पुत्र भी है, ये पति भी है, ये भरा भी है, ये सिख भी है, हो सकता किसी का दुश्मन भी है तो इको ही मनुख। मैं अर्ज करा, इस एक मनुख दे इतने चेहरे ने। ये पिता दे रूप विच इसदा चेहरा कुछ होर होवेगा, भरा दे रूप विच इसदा चेहरा कुछ होर होवेगा, पुत्र दे रूप विच इसदा चेहरा कुछ होर होवेगा, पति दे रूप विच इसदा चेहरा कुछ होर होवेगा, दुश्मन दे रूप विच इसदा चेहरा कुछ होर होवेगा, और सिख दे रूप विच इसदी शक्ल सूरत कुछ होर होवेगा। इतने ही रूप स्त्री दे ने। जे ये मां है तो फिर किसी दी धी भी है, जे धी है किसी दी पत्नी भी है, ये पत्नी है तो किसी दी भैन भी है, किसी दी सहेली भी है, किसी दी सिकणी भी है। कोई एक रूप है। हो सकता है किसी नाल वैर होवे, किसी दी दुश्मन भी है। मैं फिर अर्ज करा, दुश्मनी दे अपने भाव होंदे ने, मित्रता दे अपने होंदे ने, भरा दे अपने होंदे ने। अंदर दे ए भाव चेहरे नूं बदलदे रहिंदे, बदलदे रहिंदे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, जिहड़ा प्रभु है, खिन में अवर खिने में अवरा। हुण एक छिन दे ते कुछ होर सी, हुण दूजे छिन दे कुछ होर। छिन एक सैकंड नूं कहंदे ने। खिन में अवर खिने में अवरा, अचरज छलत तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। हे प्रभु, तू खिन दे कुछ होर दिखाई देंदा है, खिन दे कुछ होर दिखाई देंदा है। अगम है। अगम उस तों कहंदे ने जिथे तक मन नहीं पहुंच सकता। अगोचर उसनों कहंदे ने जिथे तक ज्ञान इंद्रे भी नहीं पहुंच सकती, अखां भी नहीं पहुंच सकती, कन भी नहीं पहुंच सकते, जबान भी नहीं पहुंच सकती, हथ भी नहीं पहुंच सकते। अगम जिथे तक मन भी नहीं पहुंच सकते, दी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। अगम अगोचर। खिन में अवर खिने में अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो। इत्थे एक गल नोट कर लेनी, परिवार दे संबंध पूर्वले आउंदे ने। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई।
पुत्र दा संबंध, मित्र दा संबंध, भरा दा संबंध, मां बाप दा संबंध, पत्नी दा संबंध, पति दा संबंध, ये सब पूर्व ले ने। कुछ ना कुछ रिश्ता पिछे सी, अगों भी चलदा है। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाय। ये सारे संयोग जीवन दे ते होंदे ने, अंत दे च नहीं, खत्म हो जाता। अगों फिर नवे संजोग बनते हैं, अंत दे च कोई मददगार भी नहीं आता। साध संग जो तुम्हें मिलाए, गुरु दा संजोग, सतसंग दा संजोग, ये भी पूर्वला, ये भी पूर्वला। कुछ बीज बीजे सन, वो अज फलीभूत होए ने। पूर्वला जो मैं कल कीता है, वो भी पूर्वला है। जो मैं 1 महीने पहले कीता है, वो भी पूर्वला है। जो 1 साल पहले कीता है, वो भी पूर्वला है। जो 1 जन्म पहले कीता है, वो भी पूर्वला है। अज मैनू फल मिले है कुछ, पता नहीं ये कल दा बीजे होया है कि साल पहले दा बीजे होया है, कि 10 साल पहले दा बीजे होया है, कि पिछले जन्म दा बीजे होया है। फल अज मिले है। इस वास्ते मनुख निर्णय नहीं कर सकता ये कर्म कदों कीता सी, किस वक्त कीता सी, दूर क्यों जाओ। कबीर भी कहते ने, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो बाबा रे। ए प्रभु, मैनू नहीं कुछ पता, अज जो मेरे कोल है ये केड़ा कर्म और मैं कदों कीता सी, मैनू नहीं कुछ पता। कारण बीज अज बोंदे हां, फल अज है कोई नहीं, गैब है। विचकार समय दा अंतराल है, विचकार समय दा बहुत बड़ा गैब है। कर्म ते फल विचकार बहुत बड़ा गैब है। इस गैब करके, इस अंतराल करके पता नहीं चलता किहड़े कर्म। कबीर जैसा संत भी कहंदा, मैनू नहीं कुछ समझ, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु, मैं की जाना, अज जो कुछ मेरे कोल है, पता नहीं केड़ा बोया होया बीज फलीभूत होया। अज दा कीता सतसंग भी कोई पुरबले बीज दा फल है, ते अज दा बीजे होया भी फलीभूत होवेगा। कदों फलीभूत होवेगा ये परमात्मा जाने। मैं कणक अज बीज रहा ते इतना मैनू पता है, हुण 5 महीने बाद मैनू फसल मिल जाए। मैं चने अज बीज रहा ते इतना मैनू पता है 4-5 महीने बाद मैनू ये चने अनंत गुणा हो के मिल जाणगे, प्राप्त हो जाणगे। मैं अंब दा बूटा ला रहा, अजकल नर्सरी च इस तरह के बूटे मिलते पे ने जो गारंटी देंदे ने 4 साल बाद फल देगा, 5 साल बाद देगा, 6 साल बाद देगा। इस तरह के पौधे मिलन लग पे, कलमी अंब। पर मैं कर्म अज कर रहा, जीवन की धरती च बीज अज बीज रहा। फल कदों होवेगा कुछ निश्चित नहीं, कुछ भी निश्चित, कतई निश्चित नहीं है। मैं जमीन दे जो बीजे है, कुछ ना कुछ निश्चित है। 5 साल बाद कणक वड्डांगा, 5 साल बाद मैनू 5 महीने बाद कणक मिल जाएगी, 5 महीने बाद चने मिल जाएंगे। निश्चित है, कुछ ना कुछ ते अंदाजा है। कर्म मैं अज कर रहा, हुणे फलीभूत कदों होवेगा इहदा बोध कोई नहीं। कुछ निश्चित निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस वास्ते धार्मिक कर्म करन लग्या बहुतियां दी मायूसी बनी रहिंदी। कणक बीजन लग्या मायूसी नहीं आउंदी, 5 महीने बाद वड्डांगे, फसल मिलेगी। चौल बीजन लग्या मायूसी नहीं आउंदी,
चने बीजन लग्या, मकई बीजन लग्या, मायूसी नहीं आउंदी। 4-5 महीने बाद छलियां मिलणगियां मकई दियां। मैं अज वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहा, मैं अज बाणी पढ़ रहा, फल चूंकि निश्चित कुछ नहीं है, समा निर्धारित कुछ नहीं है। इस वास्ते हर धार्मिक कर्म करदियां धार्मिक लोगों की मायूसी बनी रहिंदी। उत्थे वो उत्साह नहीं आउंदा जिहड़ा एक किसान कोल कणक बीजण लग्या हुंदा। उत्थे वो उमंग नहीं आउंदी जिथे एक जमींदार कोल जदों मकई बीजदा है ते उमंग है। 5 महीने बाद 6 महीने बाद आपां मकई वढनी है, छलियां तोड़नियां। कुछ निश्चित नहीं अज दा सतसंग कदों फलीभूत होवे, निश्चित कुछ नहीं। इत्थे इस तरह भी है, अज सतसंग कीता शायद अज ही फल, अज ही हुणे जमीन दे च अज बीज बीजे हुणे फल नहीं है। ऐदा फल हुणे हो सकदा, हुणे। बाबा फरीद कहंदे भी ने, अगर अज मैनू नहीं मिल सकिया तो इहदे च मेरी ढिल है, कुछ मेरी कमजोरी है, परमात्मा की तरफों नहीं है। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणियां मनो मचिंदणियां, ये वाशनावां जो मन नू टिकण ही नहीं देंदियां। देखो ये जिहड़ा तन है ना, इनू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। ये देश दे अस्थान दे भरमण करदा है। काम कार करना है, खेडना है, मकान बनाना है, कारोबार विहार चलाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो जगह ते चाहिए है। तन नू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए। मन अस्थान दे च नहीं दौड़दा। अब सारे सियाणे मन किस दे च दौड़दा है? काल दे च दौड़दा है, समय च दौड़दा है, अस्थान दे च नहीं चाहिए। मन नू अस्थान चाहिए ही नहीं, ये अस्थान दे च नहीं दौड़दा। गहराई नाल लेना है, सुनो। मन समय दे च दौड़दा है, मन वकत दे च दौड़दा है, मन काल दे च दौड़दा है, चला जांदा है दौड़ के भविष्य दे च, आने वाले कल दे च चला जांदा है, दौड़ के गुजरे हुए कल दे च, भूतकाल दे च, बस दौड़दा ही रहिंदा है। कदी भविष्य दे च, कदी भूतकाल दे च। इहदी भज दौड़ बनी रहिंदी है। मन कर्म मैं हुण कर रहा, वाहिगुरू वाहिगुरू मैं हुण जप रहा, ते मन है किधरे भविष्य दे च, हुण है कोई नहीं। जिन्हें फल खाना है वो हुण कोई नहीं, प्रभु ते हुण फल ला रहा है, खाण वाला कोई नहीं। प्रभु ते मेरे बीजे हुए नूं हुण फलीभूत कर रहे हैं, पर जिन्हें ये रस लेना है वो ते चला गया भूतकाल दे च, वो ते चला गया भविष्य दे च। मैनू अज पाठ करन दा आनंद नहीं आया, इहदा ये मतलब नहीं अज रब ने फलीभूत नहीं कीता। अज कीता है, पर अज मैं हैगा ही नहीं सी। फल कौन खावे? दरख्तां नूं जद फल लगदे ने, तोड़े ना जाण पक के गिर जांदे। साडा कीता होया जप तप फलीभूत होके रोज ही गिर जांदा है, रोज। इसनूं इस तरह लेना साडे पल्ले नहीं पैंदा। क्यों? असीं हुंदे ही नहीं। जिन्हें खाना है उस फल नूं हुंदा ही नहीं। वो किथे चला जांदा है? वो भूतकाल दे चला जांदा है, गुजरे हुए समय दियां यादां चला जांदा है, वो आण वाले समय दी चिंता चला जांदा है। मन भटकदा है काल दे च। मैं फिर अर्ज करां, ऐसा नहीं कि अज मैं कीर्तन कीता है ते रब ने उन्होंने फल नहीं लाया, अज ही लाए ने, हुणे ही लाए, उन्हें ते ला दिते ने फल। खाण वाला नहीं सी, जिन्हें खाना है वो नहीं है। अज मैं पाठ कीता है,
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਲਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮੀ ਦਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੰਬ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਟੁਕ ਦਮ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੈ ਦਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ, ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ। ਜੈ ਦਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਤੂੰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ। ਮਕਸਦ ਜਿਸਨੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਬੈਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਟੁਕਦਮ करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए, भुल के भी किसी को न पुछना है। पता नहीं रस क्यों नहीं आ रहा, ये गल याद रखना। रस ते बरस रहा है, ऐन मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं मौजूद नहीं। इन्नी गल, मैं मौजूद नहीं तो परमात्मा ते इल्जाम आ जाएगा। वो किसी वक्त रस है, किसी वक्त बेरस है। नहीं तो बाणी ते इल्जाम आ जाएगा, किसी वक्त आनंद है, किसी वक्त दुख है, कुछ भी नहीं है। कबीर ऐसा बीज बोए, बाहरे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंछी केल करंत। 12 महीने फलीभूत, 12 महीने ही फल लगे ने। तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, उसे वक्त फल। वाहिगुरु 12 महीने मौजूद है, रुत दे मुताबिक नहीं, हर वक्त उपलब्ध है। रस तैनू नहीं आया, तू मौजूद नहीं है। धर्म दी सारी साधना है अपने आप नू मौजूद रख। जे जबान दे उत्ते बाणी है तो हुण कन्ना कोल अपने मन नू भी मौजूद रख। सुने, मन मौजूद नहीं आंदा। हुण मैं फिर दोहरावां, मन चला जांदा है समय विच। समा है ते इक्को ही है, पर मनुख करके समय दी वंड हो जाती है। अगर मनुख ना होवे ते ना कोई भूतकाल है, ना कोई भविष्य है, बस समा समा है, वक्त ते है। पर वक्त दे 3 रूप सिर्फ मनुख करके ने। मेरा कुछ गुजरिया होया समय बचपना है, मेरा कुछ भूतकाल है, मेरा कुछ भविष्य है, मेरा कुछ वर्तमान है। मेरे करके समय दे 3 रूप बन गए। उनते समा इको ही है। हुण दूसरा मैं अर्ज करा, भूतकाल दे च मन चला गया है, प्रभु तो दूर चला गया। भविष्य दे चला गया, दूर चला गया। अगर वर्तमान दे च आया है तो नेड़े, जरा नेड़े आ गया। वर्तमान नेड़े है, तदी भाई गुरदास कहंदे ने, वर्तमान विच वरतदा, होवन हार सोई परवाना। वर्तमान विच मन नू ले आईए तो भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, पहले ये देख लें, जो कुछ हो जाए, जो कुछ है वो कबूल कर लें, परवान कर लें। मन भावंदा होवे फिर मन नू कबूल है, मन भावंदा नहीं होया फिर कबूल नहीं। होवन हार जो हो गया ओनू कबूल कर ले। दुख है, सुख है, नफा है, नुकसान है, इज्जत है, बेइज्जती है, कबूल कर ले। मनुख एक नू कबूल करदा है, एक नू नहीं तो मन दुफाड़ हो जाता है। मन वर्तमान विच नहीं होता। जो मैं चाहया सी अज होया नहीं, शायद भविष्य दे च होवे, मन भविष्य दे चला जाता। जो मैं चाहता पिया हुण ते कोई नहीं, ये पहले है सी मेरे को, तो मन चला जाता है भूतकाल दे। जो मिलिया सी ते चला गया उन्हों याद करदा है, जो नहीं मिलिया मिले भविष्य दे चला जाता, याद करदा। यादां दे भूतकाल भविष्य। जो मिलिया होया सी चला गया उन्हों याद करदा है।
जो चाहते आ मिले, मन उसदे चला जाता है, ਉਹਦੀ यादां चला जाता है। भूतकाल दीयां यादां ते फिर भविष्य दी चिंता, इस तरह भटकना बनी रहती है। मन अनेकां रूप अंदर बदलदा है, अनेकां तरह दीयां भावुकतावां, तो चेहरे दा रंग भी बदलता रहता है। दुश्मन दी याद आ गई, अखां कुछ होर, चेहरा कुछ होर। पुत्र दी याद आ गई है, चेहरा कुछ होर। भरा दी याद आ गई, मां दी याद आ गई है, पिता दी याद आ गई है, पति दी याद आ गई है, पत्नी दी याद आ गई है, चेहरा बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। ऐने रूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगम्मी बाणी जाप साहब विच फरमान करते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, बड़े दर्शन ने प्रभु दे। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। ये इतने रूप क्यों ने? कलगीधर कहंदे ने किसे वहम विच ना पाना, तमाशा उहदा खेल है। रामलीले दे च एक राम बन गया, एक्टर दूजा है नहीं सी, वही रावण बन गया, फिर वही रावण बन गया। उन्हां कोल होर एक्टर कोई नहीं सी, वही हनुमान बन गया। इको ही बंदा हनुमान भी बन जाता है, राम भी बन जाता है, रावण भी बन जाता है तो इको ही। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। जे हनुमान ते राम ते रावण, वो जो मुखौटे पहन रखे ने, वो जो लिबास पहन ले, वो एक पासे कर देन, अपना रंग रूप एक पासे कर लें, फिर एक कोई ना हो राम, ना हो रावण, ना हो हनुमान। बस परमात्मा इस तरह रूप बदलता है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। धर्म दी साधना है अनेकता दे च एक नूं वेखना। जिन्हों दिखाई दे रहा है समझ लो भगत है, अनेकता दे च एक दिखाई देवे तो फिर की करना होंदा है? कहंदे ने मन नूं एक कर, मन दुफाड़ है तेरा, इकागर कर, एक कर। मन एक होंदा नहीं। इस वास्ते हर वक्त अनेकता बनी रहती है। धर्म की साधना है कीर्तन दे राही, वाहिगुरु मंत्र दे राही, बाणी दे पाठ दे राही इनू एक कर। जैसे कोई अपना मन एक कर लेंदा है, अनेकता दे एक दिखाई देने लग पैंदा। ओही राम है, ओही रावण है, ओही हनुमान। जैसे कोई मन अपना एक कर लेंदा है, सारियां किरणां दे च ओही सूरज है, सारियां लहरां दे च ओही सागर है, सारे रूपां दे च ओही अरूप है, ओही अरूप। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। ये दृष्टि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बड़ी प्रबल है। एवें नहीं कन्हैया नूं झाड़ पाई सी भी तू अधूरा काम करदा, सिर्फ पानी पिलांदा जा जख्मां ते मरम पट्टी भी कर दिता, अपने कोलों दिती, अधूरा काम क्यों करदा? अनेकां रूपां विच उसे दी झलक। महाराज कहंदे ने कहूं फूल होए के भले राग फूले, अकाल उस्तत। हे प्रभु मैं देखदा किधरे तू फुल बन के मेरे अगों फुले है, तो ही है और कोई नहीं है। इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना सुगंधित। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले, कहूं पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताए कैसे। किधरे मैं तेरा बहाव देखदा पिया पवन दे च, हे प्रभु मैं किधरे तेरा ठहराव देखदा पिया पहाड़ां दे च।
मैं किधरे तेरा स्वप्न देखदा पिया फुल्लां दे एक मूरत अनेक दर्शन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दृष्टि, उन्हां दी दृष्टि मैं थोड़े सामने सवैयां दे रूप विच रखां। महाराज कहते ने कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत। किधरे तू बड़ा चेतन सावधान सियाणा, किधरे बिल्कुल अचेत उक्की अचेत। और मूर्ख नूं देख के नफरत होवेगी ना, मूड है। लेकिन जिस दिन दृष्टि एक हो जाती है, मन एक हो जाता है, न को मूर्ख न को सियाणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा, ये हो जाता है। कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहूं भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत। प्रभु मैं देखदा पिया किधरे हथ फैला के मंगदा पिया, बड़ा भिखारी। एक दाते एक बेखारी, जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास। कतूं भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो। मंगते च भी जिन्हों प्रभु दी झलक मिले, मंगते नाल घिरना करेगा। सब तेरे चोज विडाणा। एक दाते एक बेखारी, जी सब तेरे चोज विडाणा। कतहूं भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत। किधरे तू माड़ा मोटा दानी नहीं, महादानी, बड़ा वड्डा दान पिया करदा। दानी दे च भी किधरे व्यक्ति नूं देखोगे, घृणा भी हो सकती है, नफरत भी हो सकती है, ईर्षा भी हो सकती है, पर उहदे विच भी प्रभु नूं देखिए, फिर खेड कुछ होर बनदी। कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूं महाराजन ते छीन छित लेत। किधरे तू किसे नूं हुक्मरान बना देना, राजा बना देना, फिर किधरे राजपाट सारे दा सारा खो लेना। इनू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इंज फरमान करते ने, खिन में अवल खिने में अवरा, खिन में रंक राव को करई राव रंक कर डारे। रीते भरे भरे सख नावे, ये तां को व्यवहारे। प्रभु ये तेरा व्यवहार है, धंधा है, खालियां नू भर देना है, भरियां नू खाली कर देना, यही कुछ करता रहना। तेरा तमाशा भरदा रहना, फिर खाली कर छड़ना, खाली कर देना, फिर भर देना। ये भरना ते खाली करना, जन्म दे दिता फिर मरण कर देना, फिर जन्म दे देना, फिर मरण कर देना। राजा बना दिता, भिखारी बना दिता, हुण भिखारी है फिर राजा बना दिता है। खिन में रंक राव को करई, बड़े बड़े चोटी दे धनाड़ मैं इन्हां अखां नाल थोड़े ही सालां च देखे ने। पहाड़ां जिन्हां दी हस्ती सी कख होए, मैं तो कख होंदे देखे, कुछ भी नहीं। और इन्हां अखां ने देखिया जो कख सन गलियां दे, पहाड़ां वर्गे। खिन में रंक राव को करई, राव रंक कर डारे। रीते भरे भरे सख नावे, ये तां को व्यवहारे। मैं कखां नूं पहाड़ होंदा देखे, और मैं पहाड़ां नूं कख होंदा देखे। इन्हां अखां ने इस तरह दा देखे। रब्बी कौतक गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने, यही धंधा है उहदा, ये तां को व्यवहार है, ये उहदा धंधा है, रब दा धंधा है, यही कुछ करता रहता है, यही कुछ करता रहता है। कतहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूं वेद रीत, कहूं तासिम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत। दूसरा सुनो, कहूं जछ गंधर्व रग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर, पिशाच कहूं प्रेत।
किधरे मैं देखदा तू देवतियां दा बड़ा वड्डा संगीतकार है, रागी है, गंधर्व है, जज है, पर किधरे तू किन्नर है, ना पुरुष है ना स्त्री है, किन्नर तू ही है। ना तू उसनों पुरुष बनाया ना तू उसनों स्त्री बनाया। मनुख दिखाई दे रहा है सारे दा सारा संपूर्ण, पर ये पुरुष जैसा भी नहीं है, स्त्री जैसा भी नहीं, किन्नर है। कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत पिसाच, भूत प्रेत पिसाच। चंगियां रूहां जो भटकदियां ने उन्हां नूं देवता कहंदे ने, माड़ियां जो भटकदियां ने उन्हां नूं पिसाच भूत प्रेत कहंदे ने। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। बदकिस्मती जिस चीज का बंदे नूं पता नहीं होंदा ना, उसते भी किंतु परंतु करन लग पैंदा। किसे दे प्रश्न ते मैं कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच 15 दिन बोलदा रहा। विदेश की गल है और सारा रिकॉर्ड होया, टीवी ते दिखाते रहे। उत्थे 5-7 डॉक्टर मैनू मिले, कहंदे ज्ञानी जी ये नाल ते बड़ा वहम फैलेगा। ते मैं कहा फिर पहले गुरु अर्जन देव जी ते इल्जाम ला लो, आख देते हो पैन, मैं ते उसदा खुलासा किया, मैं ते उसदी व्याख्या की। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। जमीन दे उत्ते कोई 6.5 अरब दे करीब मनुख ने ना इस वक्त, तो गुस्ताखी माव 6.5 अरब भूत प्रेत भी मन लो। जमीन दे उत्ते इस वक्त 6.5 अरब दे करीब मनुख हो गए, इतने देवते भी मन लो। देवतियां दा वासा सतसंग दे च आउंदा है, मंदिरां च आउंदा है, मस्जिदां च आउंदा है, दरगाहां ते आउंदा है, गुरुद्वारियां च आउंदा है। भूतां प्रेतां दा वासा वैश्यालियां च आउंदा है, शराबखानियां च आउंदा है, जुए खानियां च आउंदा है। जितने जुआरी बैठे होंदे ने उतने भूत भी बैठे होंदे। किसे मंदिर दे जितने सतसंगी बैठे होंदे ने उतने देवते भी बैठे होंदे। और मैं वो पुरुष भी देखे ने जिन्हां कोल देव दृष्टि है, देव दृष्टि है, देवतियां नूं देख लैंदे। अद की मेरे को नहीं आए, हुण सूरत पहुंच रहे ने ज्ञानी बलविंदर सिंह, कनेडा रहिंदे ने, चंगी भजनिक आत्मा। सियाटल दी गल है, सियाटल अमेरिका दा एक शहर है, जिथे जहाज बनते हैं उत्थे ही बनते हैं, मशहूर है वो, इसे करके वो शहर मशहूर है। जंबो बोइंग बहुत वड्डी कंपनी है बोइंग, ते ओ जहाज तरह तरह के बनाते, दुनिया देखण जांदी है। उत्थे एक गुरुद्वारा है, 5-7 ट्रस्टियां ने बनाया, लड़ाई झगड़ियां तो तंग आके थां थां ते वो बनाते सन, कब्जा दूजे कर लेंदे सन विच। तो फिर उन्होंने ट्रस्ट बना के अपने कोलों खर्च करके गुरुद्वारा बनाया। जिस दिन बनया मैनू फोन किया, ज्ञानी जी तुसीं सानू 1 हफ्ता दे दो किसी तरीके नाल। गए उत्थे, फिर हुण मैं कई सालों तो 1 हफ्ता उत्थे ठहरदा हुंदा, प्यार करदे ने। वो उन्होंने जिहड़ा गुरुद्वारा बनाया बिल्कुल पहाड़ दे उत्ते, अलग रमड़ीक जगह है। कई दफा मैं 2-3 दिन उंज भी रह जाता हूं उत्थे। मैं उन्होंने नहीं दसदा हुंदा भी मैं इत्थे रहना है, भी अज मैं जा रहा, सारा इंतजाम कर लईदा है, भी मैं 3-4 दिन ठहर जाना। जगह बड़ी रमरीक। कथा दे दौरान एक दिन एक सिंह उठ के आया, ज्ञानी बलविंदर सिंह दे कोल संगत विच बैठे सन। उन्होंने कहंदा है बई ये स्टेज दे उत्ते ये 2 बंदे लंबियां लंबियां दाड़ियां वाले कौन बैठे ने, बड़े रूहानी लगते हैं, बड़ा प्रताप लगता है ना। ते ज्ञानी बलविंदर सिंह कहन लगे स्टेज ते कल्ले मसीन जी बैठे ने। कहंदे नहीं 2 होर पिछे बैठे ने दीवार दे नाल, बड़े लंबे दाड़े। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहन लगे भी तू अपनी अखां दा इलाज करा, स्टेज ते कोई भी नहीं। खैर बाद विच मैं ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं पुछया, मैं कि संगत च उचेचा उठ के आया, खलबली भी मची, थोड़े कोलों औखा होके भी गया,
कहने औखा हो के जाना ही सी, मैं उन्होंने 4 सुना दित्तियां, अपनी अखां दा इलाज करा। मैं कहा नहीं, मैनू कोई उहदी दृष्टि दी बारीकी दिखाई दी है। कहंदे फिर सुनना चाहते हो? कहंदे स्टेज दे उत्ते 2 बंदे बैठे ने, हुण मेरा मूँह ते संगत दी तरफ, वो रहिंदा भी सज्जन सियाटल है। जिहड़े ट्रस्टी ने उन्होंने भी पता चल गया, सरदार हरशिंदर सिंह होर 5-4, बई वो इंज कहंदा। दूजे दिन भी कहा, तीजे दिन भी कहा। ज्ञानी बलविंदर सिंह तंग आके कहंदे ने, मैं हुण उत्थे ही बैठना है जिथे तू कहंदा ना 2 बैठ देना, मैं उत्थे ही बैठना। स्टेज इस तरह की बनी है, विचकार धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आउंदा, एक पासे रागी प्रचारक बैठ के कथा कीर्तन करते हैं, दूजे पासे जिहड़ी अद्धी स्टेज बनी हुई है उत्थे गुटके पए ने, पोथियां पईयां होंदियां, कड़ा प्रसाद दी देग रखते हैं। एन उसी जगह दे उत्ते ज्ञानी बलविंदर सिंह बैठ गए, कथा करदे हैं। मैनूं अजे 15 मिनट ही होए, बड़ी बुरी तरह गिर गए। ज्ञानी बलविंदर सिंह चीख भी निकल गई, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੌਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਵਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ, ਅਮੁਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਹਿਮੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ? ਮੇਰਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਜਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਗਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤਰ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਐ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਐ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
मैं कहा होर भी आंदे ने, कहना बड़ा दरबार साहब दे ते हजारां आउंदे रोज मेरे जैसे। इत्थे आनंद है, इत्थे रस है। तो औखे ना होना जे 6.5 अरब दे करीब जमीन ते मनुख ने, अरबां खरबां देवते ने, फरिश्ते ने, पर सिर्फ इतना नहीं, अरबां खरबां भूत भी है गए। कई कोट भूत प्रेत सू कर मिरगार, ये गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदिरां च नहीं आ सकते। उन्हां दे जिहड़े संस्कार ने इत्थे तालमेल नहीं बैठदा, रुकावट है उन्हां दी। वो जाणगे शराब खानियां च, वो जाणगे जुए खानियां च, वो जाणगे वैश्यालियां च। उन्हां दा आनंद रस जो उन्हां कोल संस्कार ने उत्थे ही बनदा है, इत्थे नहीं। जिथे भजन कीर्तन कथा ज्यादा होवे उत्थे ज्यादा होंदे ने। दरबार साहब, हजूर साहब, सीसगंज साहब ऐसे अस्थान ने देवतियां नाल भरे ही रहिंदे ने। ये भी मैं अर्ज करां, फरिश्तियां नाल भरे ही रहिंदे ने। जिन्ने चिर तक उन्हां दा जन्म नहीं आउंदा, ये गुरुद्वारियां मंदिरां तो बिना होर किधरे भी नहीं जाणगे, किधरे भी नहीं जाणगे। गैनी बलविंदर सिंह इत्थे सूरत आ रहे ने, मैनू कहण लगे ज्ञानी जी भावें मैनू उन्हां ने एक पासे कीता ते मैं गिर गया, पर उन्हां दी छूह नाल मैनू आनंद बड़ा आया, रस बड़ा आया। बुजुर्ग ने 80-85 साल दे ने। दास ने कल सूरत जाना है, वो अज सूरत पहुंचणगे। फिर उन्होंने उन्होंने कौतक दसे। हुण मेरा ध्यान ते संगत दी तरफ, तो मैं कहा ज्ञानी जी तुसी मेरे को अर्थ सिखते रहे हो, पढ़ते रहे हो, पर थोड़े को दिव्य दृष्टि है, साधना थोड़ी सफल हुई है, मेहनत कीती हुई। ये अखां दृश्य नूं देखदियां ने, यकीन जानो अदृश्य नूं भी देख सकदियां। दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर ना देखा। तो हरि ते निराकार है, कबीर कहंदे ने आपां देख रहे हैं। या ते कहो कबीर झूठ बोलदा, गुस्ताखी माओ। अगर कबीर जैसा संत झूठ बोलदा है तो फिर दुनिया च कोई सतवादी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ते कबीर कोल पुछिए, देख रहे हो तुसी, एदा सबूत? तो कबीर कहंदे जे सबूत नूं वेखण दी जांच है ते मेरियां फिर अखां ही वेख लो। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन ना जाई। मेरी अखां ही वेख लो। ये देवतियां नूं वेखदियां ने कि भूतां नूं वेखदियां, ये परमात्मा नूं वेखदियां ने कि पदार्थ नूं वेखदियां, ये रूप नूं वेखदियां ने कि अरूप नूं वेखदियां ने। मेरी अख ही सबूत है जे थानूं देखण दी जांच है। मैं हुणे अर्ज कीती, मन दीयां भावनावां चेहरे ते प्रगट होंदियां, अखां च प्रगट होंदियां। जिन्नू रब दिखाई देंदा होवेगा उहदी दृष्टि भी रब वर्गी होवेगी, जिन्नू अमृतमयी दृष्टि कहंदे। जिन्नू परमात्मा दिखाई देंदा है वो दृष्टि परमात्मामयी है, अमृतमयी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, समा होण लगा, कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत, काहूं होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो। ए प्रभु किधरे तू हिंदू है, गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही है। पर किधरे तेनू गुफा विच बैठना चंगा ही नहीं लग्या, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देंदा है। काहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को बकाब होए पुराण को पढ़त मत, करतहूं कुरान को निदान जान लेत। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, कंठ है तेनू सुनाई जांदा है, सुनाई जांदा। मैं उस बीबी कोल बहुत सारी कुरान सुन ली, मैं हैरान होया। आम हालत दे चो नहीं सुना सकती, वो होंदा है ते सुना सकती, वो बैठा हुए ते सुना सकती। उन सिर्फ पंजाबी पढ़ी हुई, बाकी नहीं कुछ। पता नहीं कितने ने मैनू कहा, ज्ञानी जी ये नाल ते वहम बद्या। मैं कहा तुहाडा वहम बद्दा होगा, सच्चाई ते ही है, सच ते है। सारा संसार जे मनुखां नाल भरिया पिया, सारा संसार देवतियां नाल भी भरिया पिया,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਤੋ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੌਣ? ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ, कहो कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवान। 33 करोड़ देवते मेरा ये आनंद वेखण वास्ते आए ने, सारे आ गए ने बई एक आत्मा ने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया, खुशी जाहिर पे कर देन। सारे आए ने मैनू मुबारकां देण, वधाइयां देण। हुण जिन्हां कोल दिव दृष्टि होएगी देख लैणगे इन्हां देवतियां दा इकट्ठ कबीर दे कोल। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना। 33 करोड़ दे 33 करोड़ आए ने, एक दो नहीं है, सारे ही आए ने। कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। दो गल्लां मैं फिर अर्ज कर दियां। कोई बंदा रोगी होवे, जणा खणा उहनूं दवाई दसन लग पैंदा, भावें वो शरीर शास्त्री होवे भावें ना होवे, ते भावें दवाइयां दा भी कख ज्ञान ना होवे, ऐ लै ला ऐ लै ला ऐ लै ला। हुण शरीर च माड़ा मोटा नुक्स ते हुंदा, मैं किसे नूं नहीं दसदा, मैं कहने भी दवाई दसनी है, इन्हें भी कुछ ना कुछ कहना। भावें कख ना आप उस दवाई नाल आप ना ठीक होया होवे, दूजिआं नूं ठीक करदा। धर्म बारे भावें कख ना जाणदा होवे, राय देण नूं तैयार नहीं। जिस चीज दा पता ना होवे उस चीज बारे राय नहीं देनी चाहिए। जिस चीज का बोध ना होवे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान ध्यान नाल सुनना। कहूं जच गंधर्व ओ रग, कहूं विद्याधर, कहूं वह किन्नर, पिसाच कहूं प्रेतो, कहूं होय के हिंदू आ गायत्री को गुपद जपयो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को बकाब होय पुराण को पढ़त मत, कहूं कुरान को निदान जान लेत हो। इतना समदृष्ट अवतारी पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो बिना लभना कठिन है। हे प्रभु तू ही कुरान दा हाफिज है, तू ही पुराणा दा ज्ञाता, तू ही गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देंदा। ऐनी समदृष्टि। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत। किधरे ते प्रभु तू देवतियां दी महफिल दे च बैठा है, देवते ही देवते। किधरे दानवान, इत्थे दानवान तो मुराद दानी नहीं, दाना। तू दाना बीना जेड़ा शब्द आंदा ना, बीना तू बारीक वेखण वाला है, दाना तू बहुत सियाणा है। तू दरियाओ दाना बीना, ये दाना शब्द फारसी का है। दाना बहुत सियाणा, बहुत सियाणा, बहुत सियाणा। कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। हे प्रभु मैं देखदा किधरे दाना बंदा इतना सियाणा पर हंकारी, बड़ा हंकारी। कुदरती गल है, पढ़ा लिखा सियाणा मनुख हंकारी होंदा ही होंदा। उहदे कोल हंकार वास्ते उसका ज्ञान होंदा है, उसकी जानकारी होंदी है। कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। किधरे तू सारे इंद्रियां दा सुख दे देना है, किसे नूं राजा बना देना है, किधरे सब कुछ खो लेना है, सब कुछ खो लेना है, कुछ भी नहीं आंदा उहदे कोल। छिन में रंग राव को करी, इस तरह कर छड़दा है तू। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कहूं विचार अविचार को विचारत हो, कहूं निज नार पर नार के निकेत हो। किधरे तू बड़ा भारी विचारक है, अपनी स्त्री तो बिना तू किसी होर नूं देखदा भी नहीं। किधरे बिल्कुल अविचारक है, हर वक्त पर नार दा चिंतन करदा है, दूसरे दी स्त्री दा। लोक अंदर ठाणी हर वक्त इस तरह ही करदा है, हर वक्त तेरी ये बिरती। देखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बोध किथे किथे तक जांदा है। कहूं शस्त्रधारी कहूं विद्या के विचारी कहूं,
मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो। कहूँ देव बानी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मृणानी, कहूँ श्याम कहूँ सेत हो। प्रभु तू निरा देवता नहीं, तू देवी भी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ। कहूँ मंगला मृणानी कहूँ श्याम कहूँ सेत। ए प्रभु मैं देखदा किधरे तेरा रंग बिल्कुल सांवरा है ते काला है, पर किधरे तू बिल्कुल चिट्टा है ते गोरा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ऐसा कथन। गोरे जिहड़े सन अफ्रीका दे च राज करदे सन, कालियां नाल नफरत करदे सन, ते जिहड़े काले अफ्रीकन सन वो गोरियां नाल नफरत करदे सन। एक दूजे नूं दूजियां दे रंग नहीं चंगे लगदे सन। ये काला है, काले कहंदे सन, गोरे ने चिट्टे ने मरोगी ने। महाराज कहंदे तू ही है। कहूँ श्याम कहूँ सेत, कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। सन्यासी डंडीधारी सन्यासी, किधरे जटाधारी तू जोगी है। नफरत वासी किधरे जगह ही नहीं रही, इन्नी समदृष्टि। कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। जय नहीं साधो, ऐन जिथे बैठन के जगह साफ करके कोई कीड़ा मकोड़ा ना, और बड़े ध्यान नाल चलणगे, पैरां थले कोई कीड़ी ना आ जाए। कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। कतहूँ सिपाही होए के सादत से लाहन को, कहूँ छत्री होए के और मारत हो मरत हो। किधरे सिपाही हैं, सूरवीर हैं, छत्री हैं, मरना मारना ही तू जानना है, सूरवीर है। कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो। किधरे तू ऐसा उपदेशक है, ब्रह्म ज्ञानी है। ये जो संसार दे भौतिक पदार्थ ने जिन्हां दे दिल दिमाग दे उत्ते छाए ने, तू कड्ढण दा यतन करदा है। ते पर कितना इतना तू भौतिकवादी है, इतना भौतिकवादी है, त्यागी दे मन दे अंदर भी भौतिक पदार्थां दा इतना लोभ पा देना है, वो त्यागी भी जो है भोगी बन जाता है, प्रभावित हो जाता है। कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन पर्यंक कहूँ शुद्धता की सार हो। किधरे तेरे ते कोई कलंक नहीं, कोई उंगल नहीं उठा सकता। भी तू ऐसा कीता सी या ऐसा बोलिया सी या ऐसी तेरी करनी है, बिल्कुल अकलंक। पर किधरे तू बड़ा कलंकित है, जने खने दी उंगली उठती है। तू यह कीता है, तू यह कीता है, तू यह कीता है, तू यह कीता है। हुण बचेगा कोई नहीं, अकलंकित ते कलंकित सब दे जिसनों एक दिखाई देंदा है, नफरत किहदे नाल करे। कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन पर्यंक कहूँ शुद्धता की सार हो। कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुत्सत को कर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो। किधरे तेरे सारे कर्म धर्म दे अनुसार ने, देवता है, पर किधरे तेरे सारे कर्म भेड़ कुत्सत को कर्म ही करता। एक कर्म भी ठीक नहीं। को कर्मी ते तरस आवे ते समझ लो बंदा पूरा दयालु है। जिवें मरीज ते तरस आउंदा ना, बहुत रोगी विचारा तड़प रहा है ते उसते तरस आउंदा है। गुनाह को कर्म की ने, मानसिक रोग ने। हुण ते थोड़े जिहा मनोविग्यानक भी मनदे पए ने, कातल डकैत चोर, ये चोर कातल डकैत नहीं ने, मानसिक रोगी ने। इन्हां दा मन ठीक नहीं, मानसिक रोगी ने। जे शरीरक रोगां दी निवृत्ति दे तरह तरह दे साधन लभे गए ने, मानसिक रोग दी निवृत्ति दा साधन प्रभु दा नाम है, सतसंग है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੈਸਾ ਬਾਹਟ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਰਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 35-36 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਵੇ ਪਿਆ, ਰਵੇ ਪਿਆ। ਆ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰਗੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੌੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਈ ਜਾ। ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਓਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਠਿਕਾਣਾ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਸੁਮਤ ਦੇਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਐ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਬੈੜੇ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਕੁਤਸਤ ਕੁਕਰਮ, ਸਾਰੇ ਕੁਸਤ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। कहूं अकलंक कहूं मारत मयंक कहूं पूरन पर्यंक कहूं शुद्धता की सार हो, कहूं देव धर्म कहूं साधना के हरम, कहूं कुत्सत कुकर्म कहूं धर्म के प्रकार। किधरे तेरा सारा कर्म धर्म दे अनुसार है, किधरे तेरे सारे ही कर्म कुकर्म ने। कहूं धर्म के प्रकार, कहूं पवनहारी कहूं विद्या के विचारी, कहूं जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूं नार, कहूं छत्रधारी कहूं छाला धरे छैल बारी, कहूं छकवारी कहूं छल के प्रकार हो। एक दो होर भी सुना दे, घड़ी ते मैनू रोकदी पई है, पर एक दो मिनट। सतगुरु दी दृष्टि द्वापुर दे चली गई, गुरु गोबिंद सिंह जी। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार। हे प्रभु कमाल दी गल है, किधरे बड़ी मधुर तो मुरली वजाना है, बड़ा सुंदर गावना है,
बड़े अच्छे ढंग नाल निरत कर लैना, नच लैना। ये दृष्टि सतगुरां दी चली गई द्वापर दे विच। कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत के नचैया, कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया, बेन मुरली, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार। किधरे हे प्रभु कमाल दी गल, तू मक्खन चोर है, मक्खन चुरा लेना। लाखन लवैया, मक्खन खाण वाला और चोरी करदा। जसोदा दा सक्का पुत्र नहीं सी, मतरेई लड़का सी, तो पालदी सी ना, मां ते ओदी देवकी सी। मक्खन उपर रख लेंदी सी उच्चा। पता सी ये कृष्ण छोटा बालक रूप, इनू मक्खन बहुत चंगा लगदा है, बहुत खांदा है, ज्यादा ना खावे, उपर रख लेंदी सी। ਇਹ ਨਟਖਟ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੱਖਣ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, कहूँ बेन के बजैया, किधरे गौआं चारदा, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो, सुधता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। निर्जुर निरूप हो, निर्जुर तू जोड़ नहीं है, जिमें साडा शरीर कईयां दा जोड़ है ना, हवा है, पानी है, अग्नि है, मिट्टी है, आकाश है, सारे दे जोड़ नाल तन बनिया ना। निर्जुर तू जोड़ नहीं है, अजोड़ है, निर्जुर तू कई चीजां दे जोड़ नाल नहीं बनिया, तू जुड़े होया नहीं है। असी जुड़े होया, एक तत्व भी बिखर जाए तो असी नहीं हो सकते। हवा ही ना रहे तो गए, अंदर गर्मी ठंडी हो जाए तो कह देंगे हाथ पैर ठंडे हो गए, एक अग ही ना रहे तो गए। असी जोड़ हाँ, इन्हां पंज तत्तां दा होर तरह तरह दे साजो समान दा असी जोड़ हाँ। कलगीधर पातशाह कहंदे निर्जुर निरूप तू जोड़ नहीं है, कई चीजां दा तू जोड़ नहीं, तू अपने आप दे पूर्ण है। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, के दाता महादान हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो, के अदवे अविकार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो। जो बन के जाल हो, कितने इतना खूबसूरत है, हर एक नू अपनी खूबसूरती च फसा के रख छड़दा, निरा ही जाल बनिया है तू। जो बन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, किधरे तू बड़ा भयंकर डरावना, जने खने नू तेरे तो डर लगदा है, इन्ना भयंकर काल दा रूप। ते किधरे इतना सोना, तेरी सुंदरता सारियां नू फसा के रख देंदी है, जाल बन जाती है। जो बन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के शत्रन को सूल हो, के मित्रन के प्राण हो। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को बिखाद। किधरे ते तू ब्रह्म दा चिंतन करदा है, ब्रह्म विचार करदा है, पर किधरे पढ़ लिख के विद्या हासिल करके वाद विवाद करना है, लड़ाई झगड़े पिया करना है, निकम्मे पैस मुवासे च पै जांदा है। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को बिखाद, कहूँ नाद को नानाद, कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ वेद रीत, कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत ओ अनीत, कहूँ ज्वाला सी जगत हो। पूरन प्रताप कहूँ, एकांती को जाप कहूँ, ताप को अताप कहूँ, जोग ते डिगत हो। कहूँ बर देत, कहूँ छल स्यों छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत। हर समय हर जगह हर रूप दे ए प्रभु तू मैनू एक दिखाई देना, एक दिखाई देना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनंत सवेये। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को नानाद, कहूँ पूरन भगत, कहूँ वेद रीत,
कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत ओ अनीत। किधरे तेरा सारा जीवन नैतिकता दे च है, किधरे बिल्कुल अनीति है। एक कर्म भी तेरा नैतिकता ते नहीं खड़े, सब कुछ अनर्थ है। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को नानाद, कहूँ पूरन भगत हो। कहूँ वेद रीत, कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत ओ अनीत, कहूँ ज्वाला सी जगत हो। पूरन प्रताप कहूँ, एकांति को जाप कहूँ, ताप को अताप कहूँ, जोग ते डिगत हो। किधरे बड़ा भारी जपीश्वर हैं, तपीश्वर हैं, जोगी हैं, ते किधरे तेरा जोग सारे दा सारा भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। तपीश्वर गिरावट च आ जाता है, बड़ा जोगी भ्रष्ट हो जाता है। कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ बर देत, कहूँ छल स्यों छेनाए लेत। किधरे तरह तरह दे वर दे के, साजो समान दे के अगले नो माला माल कर लेना है, ते अगला माला माल हो के इतना फस जाता है, उहदे च रुझ जाता है, फिर तू सब कुछ उहदे कोल खो लेना है, उहदे कोल सब कुछ ले लेना है। कहूँ बर देत, कहूँ छल स्यों छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत हो। हे प्रभु, हर समय और हर जगह तू मैनू एक को ही दिखाई देना, हर जगह हर समय हर रूप दे तू मैनू एक दिखाई देना। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। हे प्रभु, इन्हां अनेकां रूपां तू हर वक्त मैनू एक दिखाई देना। मैनू सारी लहरां दे सागर ही दिखाई देंदा है, मैनू सारी किरणां दे सूरज ही दिखाई देंदा है, मैनू सारे रूपां चो ओ अरूप परिपूर्ण परमात्मा दिखाई देंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये गम्मी बाणी, अगे बहुत सारे सवैये ने, अनंत बाणी अकाल उस्ताद दी बहुत लंबी चौड़ी बाणी, जिन्हों पढ़ पढ़ के बंदा बिस्माद हो जाता है। भी चलांदे ते तीर कमान तलवार, इतनी सम दृष्टि, इतनी ब्रह्म दृष्टि, इतना ब्रह्म ज्ञान, इतना आनंद दा सोमा अंदरों फुटिया, इतना ज्ञान दा सागर अंदरों फुटिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दिहाड़ा नेड़े आया, उन्हां दा पुरब नेड़े आ रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज महरामत करन, बख्शिश करन, जीवन दा अंत होवे, ये सारा ज्ञान, ये सारा रस, ये सारे रूपां च वो सानू अरूप दिखाई देवे, ताकि संसार ते आया सफल हो जाए। काफ़ी समा हो गया, कोशिश ते मैं करदा सी छोड़ा, फिर अकाल उस्तादी मैनू खिंची गई भी नहीं, ऐ सवैया भी ऐ सवैया। सतगुर दी बाणी बड़ी मिठी, बड़ी मधुर, बड़ी आनंद पूर्वक सी। साहिब रहमत करन, अज शाम दी हाज़री ते कल सवेरे दी हाज़री भर के आप तो छुट्टियां लवांगे। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।